So hello and welcome to Unveil the New. In the previous video, we have seen the basic fundamental of the BJT. We have seen the construction, we have seen the types, we have seen the symbols of the BJT, we have seen some basic advantages of the BJT. If you have not watched that video, then I highly recommend you to watch that video and then come back to this video. And if you have already watched that video, then what are we waiting for? Let's get started. So let us do a quick recap. Basically in the previous video, we have seen these 7 things, starting from the name itself to the symbols of the BJT. Now in this video, we are going to unveil that why the physical size of base, emitter and collector are defined in such a way. And also we are going to unveil that why the doping level of base, emitter and collector is defined in this way. Right? So in order to unveil these things, we need to see some basics of PN junction diode. So let us get started with the PN junction diodes basics. So PN junction diode is made up of P-type semiconductor material and N-type semiconductor material. So basically we are connecting P-type semiconductor material with the N-type semiconductor material, and at the surface where they have been joined together is known as a junction. So at this surface, इस surface पे क्या हो रहा है कि कुछ मैजिकल चीजें हो रही है. अब ये मैजिकल चीजें क्या हो रही है वही हमको समझनी है. तो हम बात कर लेते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में पहले. So N-type semiconductor is having the electrons as a majority charge carrier and holes as a minority charge carrier. मतलब कि N-type semiconductor material में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे और बहुत कम मात्रा में हमको होल्स मिल जाएंगे. उसके ऑपोजिट P-type semiconductor material में बहुत ज़्यादा होल्स हमको मिल जाएंगे और बहुत ही कम मात्रा में हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. So P-type semiconductor material is having a holes as a majority charge carrier and electrons as a minority charge carrier. ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हम P-type semiconductor material और N-type semiconductor material को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं. जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो जंक्शन के पास N-type semiconductor material में कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज होकर P-type semiconductor material में चले जाते हैं. ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस जो हो रही है वो जंक्शन के नजदीक के एरिया में ही हो रही है. अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले जो N-type semiconductor material के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. मतलब कि जो N-type semiconductor material था वो न्यूट्रल था. लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स P-type semiconductor material में चले गए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स चले गए उसकी जगह पे हमको होल्स मिल जाएंगे. अब ये होल्स पहले अवेलेबल नहीं थे. ये अवेलेबल क्यों हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां से चले गए. तो उसकी वजह से जो N-type semiconductor मटेरियल है उस जंक्शन के नजदीक वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. सिमिलरली अगर P-type semiconductor मटेरियल की बात करें तो वहां पे जंक्शन के नजदीक पहले हमारे पास होल्स थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके P-type semiconductor मटेरियल में आ गए. तो पहले तो P-type semiconductor मटेरियल क्या थे, न्यूट्रली चार्ज था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ गए हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि P-type semiconductor मटेरियल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है. तो इस रीजन जहां पे हमको P-type semiconductor मटेरियल में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और N-type semiconductor में हमको पॉजिटिवली चार्ज होल मिल जाएंगे, तो इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन. ठीक है, अब होता क्या है कि इन दोनों नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जंक्शन के नजदीक पे, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल. ठीक है, अब सिलिकॉन डायोड हमारे पास होगा तो ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट्स, और अगर जर्मेनियम डायोड होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट. अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि एक बार जो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हो गई, अब जो कि इलेक्ट्रॉन्स N-type semiconductor मटेरियल में है उसको ट्रैवल करके P-type semiconductor मटेरियल में जाना होगा, तो उसको 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके ही वो ट्रैवलिंग पॉसिबल होगी. अदरवाइज क्या होगा कि वो ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी है, एक है हमारा डिप्लेशन रीजन और दूसरा है हमारा बैरियर पोटेंशियल. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या होता है अगर इस पीएन जंक्शन डायोड को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. So there are two possibilities in which we can connect a PN junction diode with a battery. The first possibility is known as the forward biasing and second possibility is known as the reverse biasing. Here we need to understand that what will happen if we are connecting the PN junction diode to the forward biasing. That means we need to understand that what will happen to the width of the depletion region. अगर हम PN junction diode को forward biasing manner में कनेक्ट करते हैं तो जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है उसमें क्या इफेक्ट आती है, और अगर हम उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं
तो डिप्लेशन रीजन के बीच में क्या इफेक्ट आती है वही हमको समझना है. Now to understand this, let us refer this figure. In this figure you can see this, there is a depletion region, and in the depletion region you can see that in the p-type semiconductor material there is a 2 columns of electrons, and into the n-type semiconductor material there are 2 columns of holes. Now to understand you very simple way, we are naming this column. So first and second column, that is of electrons, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्रेजेंट है और उसमें होल्स है. ठीक है, अब इस पीएन जंक्शन डायोड को हम कनेक्ट कर देते हैं फॉरवर्ड बायस मैनर में. अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रू कनेक्शन करना पड़ेगा. तो ट्रू कनेक्शन का मतलब क्या है कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ. तो ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. अब आगे देखते हैं कि होता क्या है. जब हम इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. अब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से प्रेजेंट है, तो कि दो वजह से प्रेजेंट है. एक तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में रहते हैं उसकी वजह से, और दूसरा जो ये डिप्लेशन रीजन बना उसकी वजह से. तो अब क्या करेगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, बट जो डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स है वो भी धीरे धीरे अट्रैक्ट होके इस तरफ आना शुरू कर देंगे. तो सबसे पहले अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, तो कि फर्स्ट कॉलम जो प्रेजेंट है उस पे लगेगा. तो वो इलेक्ट्रॉन्स वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होके क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ इस तरफ लेफ्ट मोस्ट साइड जा रहे हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है जहां पे पहले इलेक्ट्रॉन्स थे अब वहां पे क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा. ठीक है, अब उल्टा देख लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या इफेक्ट आ रही है. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ. तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करती है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर से एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्रेजेंट है उसको एक रिपल्सन फोर्स लगेगा. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो जंक्शन है जो बैरियर रीजन है उसकी तरफ जो है फोर्स की वजह से उस तरफ जाना शुरू कर देंगे. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम है वहां पे होल्स है. ठीक है, बट अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि उस कॉलम में धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि वो होल्स के साथ रिकम्बाइन कर देंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जहां पे पहले होल्स थे वहां पे अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो ये फोर्थ कॉलम जो है वो हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की. तो अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा डिप्लेशन रीजन पहले 4 कॉलम का था अब वो कम होके बन गया है सिर्फ 2 कॉलम का. मतलब कि सेकंड एंड थर्ड कॉलम ही ऐसी है जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स प्रेजेंट है. तो इसका मतलब क्लियरली ये हो रहा है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ कम हो जाएगी. अब जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इसकी विड्थ और कम होती जाएगी. तो ये फंडामेंटल है फॉरवर्ड बायस का. अब देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर्स बायस में क्या हो रहा है. तो रिवर्स बायस में फिर से हम वही फिगर ले लेते हैं जहां पे हमारी 4 कॉलम प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम करते क्या रिवर्स बायस में, तो जो हमने फॉरवर्ड बायस में किया था उससे उल्टा करेंगे. मतलब कि यहाँ पे हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे. तो अब क्या हो रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कहाँ पे है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में. तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, वो धीरे धीरे जो है वो डिप्लेशन रीजन की तरफ रिपल्सन फोर्स की वजह से चले जाएंगे. तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है उसकी बाजू की कॉलम में भी वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे. क्यों, क्योंकि वो रिपल्सन फोर्स की वजह से वहां पे पहुंच गए हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम के इस साइड भी, मतलब फर्स्ट कॉलम के लेफ्ट साइड भी आपको देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो मतलब कि जो डिप्लेशन रीजन है जो पहले 2 कॉलम का था, मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो डिप्लेशन रीजन 2 कॉलम का था जिस 2 कॉलम में इलेक्ट्रॉन्स थे अब आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे एक कॉलम और ऐड हो गई है.
और सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या हो रहा है, वहां पे जो पी टाइप मतलब कि वहां पे जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं कि जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो जंक्शन से दूर जाएंगे तो क्या हो रहा है कि जो फोर्थ कॉलम है जो कि होल्स की है उसके बाजू में भी आप देख सकेंगे कि वहां पे भी ज्यादा होल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं, वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे कि जो हमारा डिप्लेशन रीजन पहले 4 कॉलम का था अब वो ज्यादा हो गया 6 कॉलम का बन गया है। और जिस तरह से हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे हमारे डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी, और अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है जब हमको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में आपको बहुत आसानी से ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करते हैं कि अगर ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के डोपिंग लेवल जो है वो अलग अलग होंगे तो हमारी डिप्लेशन रीजन की विड्थ में क्या इफेक्ट आएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल हम क्या करेंगे कि जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको हम लाइटली डोपिंग रखेंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी हम हेवीली डोपिंग रखेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है, बेसिकली हम जब बीजेटी को डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी कुछ इसी तरह से हमको कंडीशन मिल जाएगी, मतलब कि जो हमारा बेस और कलेक्टर जंक्शन जो है वहां पे भी कुछ इसी तरह से कंडीशन हमको मिल जाएगी। तो वहां से आप अच्छी तरह से इसको रिलेट कर सके उसकी वजह से ये केस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइटली डोप्ड और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हेवीली डोप्ड है। अब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एन टाइप को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पी टाइप को कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब हो क्या रहा है, अब हमारे जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो क्या करेगा, वो जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करने का शुरू कर देगा। अब एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है just because of the lightly doping these electrons are less in the quantity। इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी में तो लेस है ही बट जो पूरा जो एरिया है उसमें भी वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके जंक्शन से दूर भागेंगे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जंक्शन से दूर जा रहे हैं वहां पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे और आप आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा डिप्लेशन रीजन है वो अब ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम प्लेसेस से जंक्शन से दूर जा रहे हैं और वहां पे होल्स क्रिएट हो रहा है और हमारा जो जंक्शन है हमारा डिप्लेशन रीजन है वो किस चीज का बना हुआ है, वो होल्स का बना हुआ है। तो रैंडम जगह पे जो होल्स मिल रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ भी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लाइटली डोपिंग रखेंगे तो वहां पे जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी और हेवीली डोपिंग रखेंगे वहां पे डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी। तो यही फंडामेंटल है पीएन जंक्शन का। तो बेसिकली पीएन जंक्शन के बेसिक्स में हमने क्या सीखा, हमने सीखा डिप्लेशन रीजन, हमने सीखा बैरियर पोटेंशियल, हमने सीखा कि अगर इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ में क्या इफेक्ट आता है, और हमने ये भी देखा कि अगर इसके डोपिंग लेवल अलग अलग है तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ में क्या इफेक्ट आता है। अब ये सब जानने के बाद हम रेडी है आंसर करने के लिए जो हमने सबसे पहले आपको पूछा था। हमने सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, हमने ये पूछा था कि भाई बीजेटी में एमीटर, बेस और कलेक्टर की साइज इस तरह से क्यों डिफाइन की गई हुई है और इसके डोपिंग लेवल भी इस तरह से क्यों डिफाइन किए गए हैं। तो आइए आंसर करते हैं इस 2 क्वेश्चंस को। सो वापस से आ जाते हैं बीजेटी की तरफ। तो यहाँ पे हम एनपीएन बीजेटी को लेते हैं। एनपीएन बीजेटी में हमने देखा था कि हमारे पास 2 जंक्शन बन रहे हैं, एक जो है हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन और दूसरा जो हमारा है वो बेस एमिटर जंक्शन। और हमने ये देखा था पीएन जंक्शन बेसिक्स में कि हमारे पास क्या हो रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करने के लिए 2 तरीके हमको मिल जाते हैं, एक हमारा जो है फॉरवर्ड बाइसिंग है और दूसरा जो है रिवर्स बाइसिंग। तो हमारा जो एनपीएन बीजेटी है वहां पे हमारे पास 2 जंक्शन बन रहे हैं और दोनों जंक्शन को हम 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास 4 ऐसे केसेस बन जाते हैं जिसमें हम बीजेटी को ऑपरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक केस ऐसा है जिसमें हम हमारा जो बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में है ऐसा हम बोलते हैं। तो एक्टिव रीजन में हम क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में हम जो हमारा बेस एमिटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पिक्चर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल साइज और इसके डोपिंग के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिटर का डोपिंग सबसे ज्यादा इसीलिए रखा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो
कलेक्टर की तरफ एमिट कर सके। ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो एमिट करेगा और मान लो कि बेस की साइज ज्यादा होगी तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे। तो जितनी साइज ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से ही हमारा जो बेस है उसकी साइज जो है वो कम रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें आंसर की कि क्यों एमिटर है उसका डोपिंग ज्यादा है और क्यों बेस की साइज कम है। ठीक है, अब एमिटर की साइज तो हमने नॉर्मल इसीलिए रखी है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके। ठीक है, तो एमिटर का हमारा जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं बेस के डोपिंग की और कलेक्टर के डोपिंग की। ठीक है, तो बेस की साइज कम है और कलेक्टर की साइज ज्यादा है, तो डोपिंग कंसंट्रेशन आप देखेंगे तो बेस का डोपिंग कंसंट्रेशन कलेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। और जो हमारा बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस में करंट है, और रिवर्स बायस में हमने देखा था कि जिसका डोपिंग कम होगा उसकी डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो कलेक्टर है उसका डोपिंग कंसंट्रेशन कम है, तो उसकी जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो ज्यादा हो जाएगी। तो पूरा का पूरा जो कलेक्टर रीजन है वो डिप्लेटेड ना हो जाए, इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, कलेक्टर की साइज जो है वो ज्यादा रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे बेस में क्या किया है कि बेस का जो है वो कंसंट्रेशन हमने ज्यादा इसीलिए रखा है कि बेस की जो फिजिकल साइज है वो तो कम है, और अगर उसकी हमने डोपिंग जो है वो कम कर दी तो वो बेस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिप्लेटेड हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया है कि बेस की डोपिंग कंसंट्रेशन है उसको हमने बढ़ा दी है और कलेक्टर की डोपिंग कंसंट्रेशन कम कर दी है। ठीक है, तो ये ही आपका रीजन है कि क्यों बेस कलेक्टर और एमीटर का फिजिकल साइज इस तरह से रखा गया है और क्यों बेस एमीटर कलेक्टर का डोपिंग लेवल इस तरह से रखा गया है। So I hope that you have understand this concept easily. Now let us do a quick summary of this video. So in this video we have seen that how we are connecting the p-type semiconductor material with the n-type semiconductor material, and we have also seen the concept of depletion region and the barrier potential. We have also seen that if we are connecting the p-n junction diode with the forward bias, then what will happen to the depletion regions width, and if we are connecting it to the reverse bias, then what will happen to the depletion regions width. We have also seen a case in which if the doping of the p and n-type semiconductor materials are different, then what will happen to the depletion regions width. And from that fundamental, we have answered to the question that why BJT is having a different size of emitter, base and collector, and why the doping level of the emitter, base and collector is different. So this is it for the video. Thank you for watching. We are going to unveil the BJT in the coming videos. Thank you very much.